Good morning, class. Yesterday already taught you about the renal stone types, definition, cause, clinical features and pathophysiology, as well as investigation too. Next we'll continue from the complication and management. Complication of renal stone or kidney stone include sepsis, that is an infection which spread throughout the blood circulation and cause the symptom throughout the whole body. Next one is next complication, a blocked ureter which is caused by the stone fragment that is formed in the kidney. Next one is injury to the bladder due to the stone formation and obstruction. Urinary tract infection also arise as a complication of renal stone, and bleeding during the surgery due to the penetration in the kidney or penetration in the urinary tract. And last one is the pain. So this is the complication of renal stone. Next one is medical and nutritional management. So medical management, we give opioid analgesic agent to prevent the shock and syncope. हमको यहाँ पे शॉक और सिंकोप को प्रिवेंट क्यों करना है, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको रीनल स्टोन वाले जो पेशेंट होते हैं मैक्सिमम जो पेशेंट को हार्ट फेलियर और हार्ट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा मैनेजमेंट है जिसमें हम फोकस करते हैं, जितने भी हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेटरी जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं उनको सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं. And also use non-steroidal anti-inflammatory drugs to relieve from the inflammation and pain. Second, increase fluid intake to assist in the stone passage. Unless patient is vomiting, patient with renal stone should drink 8 to 10 ounce glasses of water daily or have IV fluids prescribed to keep the urine dilate. ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पेशेंट को हिमेचूरिया होता है, ऑलरेडी ब्लड में यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा जा रहा है. सो एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक द वाटर. नेक्स्ट इज फॉर द कैल्शियम स्टोन, टू हेल्प टू प्रिवेंट द कैल्शियम स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग, डॉक्टर में प्रिस्क्राइब अ थायराइड डायरेटिक्स और अ फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशन. So thyroid diuretics, doctor may prescribe the thyroid diuretics that reduce the amount of calcium which is released in urine, and these include hydrochlorothiazide, chlorothalidone, indapamide, all of which has to prevent the kidney stone from returning, and especially in the people who have high level of calcium in the urine. तो ऐसे पेशेंट जिनको कि कैल्शियम स्टोन हुआ है उसमें हम पेशेंट को थायराइड डायरेटिक्स देते हैं. ये जो डायरेटिक्स है वो कैल्शियम का जो यूरिन में एक्सक्रीशन हो रहा है उसको ये डिक्रीज करते हैं. नेक्स्ट वन इज यूरिक एसिड स्टोन. डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब allopurinol to reduce the uric acid level in the blood and the urine, and a medicine to keep the urine alkaline. In some cases allopurinol and an alkalizing agent may also used to dissolve the uric acid stone. So allopurinol doctor prescribe to decrease the amount of uric acid production in the body in order to prevent the formation of the kidney stone, and this medication can be useful for the people who have got or a diet which is high in animal protein. तो जो यूरिक एसिड स्टोन है उसको हम ट्रीट करने के लिए एलोप्यूरिनोल प्रिस्क्राइब करते हैं. एलोप्यूरिनोल क्या करता है, यूरिक एसिड का जो ओवर एक्सक्रीशन हो रहा है उसको डिक्रीज करता है. Next one is for cystine stone. Low protein diet is advised to the patient, and alkalization of urine and increased fluid intake is also prescribed. And next one is for oxalate stone.
इसमें भी सेम हमको करना है, यूरिन को डायलेट करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करना है टू ड्रिंक वाटर प्रॉपरली एंड लिमिटेड द ऑक्सलेट इनटेक लाइक स्पिनच, स्ट्रॉबेरी, रुबाब, चॉकलेट रुबाब, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट, टी, पीनट्स एंड व्हीट ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें जो ऑक्सलेट जिसमें जो बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट में, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। स्टोइड स्टोन, टू प्रोवाइड स्टोइड स्टोन्स डॉक्टर में रिकमेंड स्ट्रेटजीज टू कीप द यूरिन फ्री ऑफ बैक्टीरिया that cause infection including drinking fluids to maintain the good urine flow and frequent voiding. Alpha blockers to help to relax the muscle of ureter which carries urine from the kidney to the bladder, and it also reduce the spasm in the ureters, and these helps to lessen any pain and discomfort which you may experience as a kidney stone passes. The use of this medication can also allow a greater number of small stone to pass more quickly with the urine taking several days instead of several weeks. अल्फा ब्लॉकर्स फॉर एग्जांपल प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये क्या करते हैं, जो स्टोन्स है उसको ईजिली यूरिन के थ्रू पास आउट होने में हेल्प करते हैं, जिससे जो पेशेंट को पेन फील होता है उससे उसको रिलीफ मिलेगा। Next one is potassium citrate. It helps to prevent the kidney stone from growing larger or returning. Potassium citrate can also be used to help to dissolve and prevent the uric acid kidney stone. So one more option is there, that is potassium citrate, which is used to help to dissolve and prevent the uric acid kidney stone. Next one is surgical correction. सर्जिकल करेक्शन में जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारे स्टोन्स यहाँ पे बने हुए हैं। देन सेकंड में अल्ट्रासाउंड जो शॉक वेव्स है वो प्रोड्यूस किया गया और उसने क्या किया, स्टोन को क्रश कर दिया एंड देन स्मॉलर पीस पास आउट विद द यूरिन, और जो स्मॉल पीस है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं एंड बॉडी से वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पेन रिलीवर्स. Passing a small stone can cause the discomfort and to relieve this mild pain. Pain relievers such as ibuprofen, naproxen, sodium and non-steroidal anti-inflammatory drug should be prescribed. Another medical therapy जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स मैंने बताया, थायजाइड डायरेक्टिव्स, पोटेशियम सिट्रेट है ना, ये सभी पेशेंट को हम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रीनल स्टोन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट फॉर द लार्ज स्टोन. जो हमने स्मॉल स्टोन का देखा, हम उसमें बहुत सारे मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि जो स्टोन है उससे पेशेंट को रिलीफ मिले, जो स्टोन है वो ब्रेकआउट होके कि यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाए और हमारी बॉडी से बाहर हो. नेक्स्ट फॉर द लार्ज स्टोन देयर आर सम सर्जिकल मैनेजमेंट. सो फर्स्ट वन इज using sound waves to break up the stone, that is ECESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. Then second option, that is percutaneous nephrostomy, and third one is ureteroscopy. So I will deal one by one. First one is extracorporeal shock wave lithotripsy. It uses shock wave to break a kidney stone into small pieces that can more easily travel throughout the urinary tract and pass from the body. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं शॉक वेव प्रोड्यूस किया जा रहा है, और शॉक वेव प्रोड्यूस करने की वजह से जो किडनी स्टोन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ईजिली छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होने के बाद ये ईजिली यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. सो दिस इज द एक्स्ट्राकॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी. Next surgical management, that is percutaneous nephrostomy. So in this, it is a procedure in which renal pelvis is punctured while using an imaging guidance. इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिंग गाइडेंस के थ्रू हम रीनल पेल्विस को पंक्चर करते हैं. देन वी विल परफॉर्म द एंटीग्रेड पाइलोग्राम. एंटीग्रेड पाइलोग्राम हम क्यों परफॉर्म करते हैं? सो व्हाट इज द एंटीग्रेड पाइलोग्राम? Antegrade pyelogram, it is a procedure which is used to visualize the upper collecting system of the urinary tract, and also it is used to find out a blockage, any type of obstruction, any type of stone formation inside the
अपर यूरिनरी ट्रैक। तो देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें रीनल जो पेल्विस है उसको पंक्चर करते हैं। रीनल पेल्विस को पंक्चर करने के बाद हम एंटीग्रेड पाइलोग्राम परफॉर्म करते हैं विथ अ फाइन नीडल एंड देन दिस कॉन्ट्रास्ट इज यूज टू शो द कैल्सिफिकेशन एट द रीनल पेल्विस, जिससे फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रीनल पेल्विस में कितना कैल्सिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज यूरेट्रोस्कोपी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जरी विच इज़ परफॉर्म फॉर द किडनी स्टोन। इसमें हम होल्मियम लेज़र लिथोट्रिप्सी परफॉर्म करते हैं एंड दिस प्रोसीजर इज़ यूज टू ब्रेक अप एंड ऑफन रिमूव द स्टोन फ्रैगमेंट। इसमें भी हम सेम वही चीज़ करते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड यूरेट्रोस्कोप, अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड यूरेट्रोस्कोप। द सर्जन इंसर्ट इट थ्रू द यूरिथ्रल ओपनिंग। जो सर्जन्स हैं वो इसको यूरिथ्रल ओपनिंग के थ्रू इंसर्ट करते हैं, पासिंग इनटू द ब्लैडर टू वेयर द स्टोन इज लोकेटेड इन द यूरेटर और किडनी एंड द स्मॉल लेजर फाइबर इज पास थ्रू द यूरेट्रोस्कोप टू ब्रेक अप एंड रिमूव द स्टोन। जैसे इसके पहले हमने देखा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल वाले में देखा कि उसमें क्या होता है, साउंड वेव हम प्रोड्यूस करते हैं टू ब्रेक द किडनी स्टोन। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक यूरेटर जो है, एक यूरेट्रोस्कोप है, उसको हम यूरिथ्रल ओपनिंग के थ्रू इंसर्ट करते हैं जिससे कि वो ब्लैडर और किडनी वहाँ पे जो भी स्टोन है वहाँ पे पहुँचे और देन हम एक लेज़र फाइबर से हम साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रा वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वेव्स है, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं वो उन पर्टिकुलर किडनी स्टोन को ब्रेकआउट कर देते हैं, देन ईजिली वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। अनदर वन इज कीमोडायलिसिस। इट इज़ द अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर दोज हु आर अ पुअर रिस्क फॉर अदर थेरेपी एंड ऑल्सो रिफ्यूज़ द अदर मेथड। ऐसे पर्सन जो कि अदर जितने भी अभी मैंने सर्जिकल मेथड बताया उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं या फिर उनको स्टेरॉइड स्टोन है, तो इसके लिए हम कीमोलाइसिस करते हैं एंड इट इज़ द स्टोन डिसोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टोन जो है वो ईजिली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। आपको मैंने बताया था कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है अगर वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है एंड दैट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी। सो यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होगा, जो कैल्शियम का जो लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि जो कैल्शियम का लेवल है वो दैट रिटर्न्स टू नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, इन द नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट वन इज nursing assessment, assess for the pain, discomfort including severity, location and radiation of pain का हमको लोकेशन फाइंड आउट करना है, सीवियरिटी पेशेंट को कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, डीप पेन है, इंटेंस पेन है, रेडिएशन ऑफ पेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था जो मेल्स पेशेंट है उनमें पेन रेडिएटिंग टू द बैक एरिया टू द फ्रॉम द बैक एरिया टू द टेस्टिस एंड इन फीमेल फ्रॉम द बैक एरिया टू द ब्लैडर है। तो हमको लोकेशन भी फाइंड आउट करना है पेन का। असेस फॉर द अदर सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ऑब्जर्व फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक chills, fever, frequency, hesitancy, urgency, any type of obstruction, oliguria, anuria, hematuria, ये सभी चीज़ें हमको चेक करना है, असेस करना है। देन ऑल्सो ऑब्जर्व यूरिन फॉर द ब्लड फॉर दैट इज हेमेचूरिया, स्ट्रेन फॉर द स्टोन्स और एंड ग्रेवल्स। व्हाट इज ग्रेवल? इट इज़ अ लूज एग्रीगेशन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स। जो चट्टानों की जब कटाई होती है, जब चट्टानों को ब्रेक आउट करते हैं तो छोटा छोटा वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे उस तरीके का कोई स्ट्रेन्स हमको यूरिन में मिल रहा है क्या, स्टोन्स के स्ट्रेन, ये हमको चेकआउट करना है। फोकस द हिस्ट्री ऑन द फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू यूरिनरी ट्रैक स्टोन्स और दैट में हैव प्रेसिपिटेटेड द करंट एपिसोड। ऐसे कौन कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिससे कि स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, उन पे हमको फोकस करना है। Assess the patient knowledge about the renal stone and measure to prevent the recurrence. Nursing diagnosis. First one is acute pain related to inflammation, obstruction and abrasion of the urinary tract. Deficient knowledge regarding prevention of recurrence of renal stone. Impaired urinary elimination related to stimulation of bladder by calculi, renal or urethral irritation.
Risk for deficient fluid volume related to nausea, vomiting. So first nursing intervention, that is relieve pain by using non-steroidal anti-inflammatory drug and assess the patient to ambulate to obtain some pain relief measures. Then monitoring and managing the complication, increase fluid intake, begin IV fluid if patient can't able to take adequate oral fluid, monitor urine output of the intake and output of the patient, and also monitor the voiding pattern of the patient. Then crush any blood clot which is passed in the urine and inspect also the side of urinal and bed wall from the clinging stone. Next one is instruct the patient to report decreased urine volume, bloody and cloudy urine. पेशेंट को हमको इंस्ट्रक्ट करना है कि अगर उनको यूरिन में किसी भी तरह का ब्लडी यूरिन दिखाई दे रहा है या क्लाउडी यूरिन दिखाई दे रहा है या फिर यूरिन का वॉल्यूम बहुत ही कम है तो वो हमको तुरंत रिपोर्ट करें. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी इंक्रीज इन पेन, मॉनिटर वाइटल्स. नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग होम एंड फॉलो अप केयर. So instruct the patient to increase fluid intake to assess the passage of stone fragment. पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको अगर सर्जिकल अगर लार्ज स्टोन है और आपकी सर्जरी हुई है तो भी आपको कुछ महीनों तक क्या करना है, आपको कंटिन्यू बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेना है जिससे कि जितने भी स्टोन्स हैं, माइनस स्टोन्स फ्रेगमेंट है, वो ईजिली यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. Inform the patient that hematuria is anticipated but should subside in 24 hours. Give appropriate dietary instruction. पेशेंट को प्रॉपरली देना है. Encourage regimen to avoid the further stone formation. So advise the patient to adhere to the prescribed diet. पेशेंट को हमको एडवाइस करना है कि उनको किस तरीके की डाइट्स लेनी है. And teach patient to take the sufficient fluid. Drink water properly. Eat fewer oxalate rich food. Choose a diet which is low in salt and animal protein because it increase the calcium oxalate level in our body and helps in stone formation. Then advise to continue eating calcium rich food but use consciously with the calcium supplement. Calcium in food doesn't have an effect on your kidney stone but continue ईटिंग कैल्शियम रिच फूड अनलेस योर डॉक्टर एडवाइस अदरवाइज. कैल्शियम रिच फूड लेना है लेकिन अगर ऑलरेडी कैल्शियम स्टोन हुआ है और आपने डॉक्टर से एडवाइस नहीं ली है तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो सबसे पहले डॉक्टर से एडवाइस लेना है. आस्क द डॉक्टर बिफोर टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स as these have been linked to increased risk of kidney stone. So you may reduce the risk by taking supplement with the meals, and diet which is low in sodium can also increase kidney stone formation in some people. So this is the prevention, management and complication of kidney stone topic has completed.